Chapter is Proof in Mathematics, and in this chapter we will study and learn about different ingredients of a proof and other related concepts learned in class 9th. The negation of a statement, converse of a statement, and finally proof by contradiction. Let's revise what we have learned in class 9th about mathematical statements. कुछ याद है? So statement किसको बोलते हैं या किसको नहीं बोलते हैं, वो that is more important. किसको नहीं बोलते हैं? A sentence which is not an order ना हो, exclamatory sentence ना हो और ना ही वो क्वेश्चन हो, तो वो क्या होगा? That sentence will be a statement. Let's take some example. Which two teams are playing in the cricket World Cup? So it's a question. Question mark भी लगा और वैसे it's a question. कौन कौन दो टीम खेली थी वर्ल्ड कप में? So if it is a question, so it's not a statement, right? Another example. Go and finish your homework. So it's an order. मम्मा order दे रही है. Go and finish your homework. So if it is an order, this is not a statement. What a fantastic goal. क्या बढ़िया गोल किया पहले ने. So it's an what is that? मैं सरप्राइज हो रहा हूँ, काफी सरप्राइज हुआ, एक्साइटेड हो गया. So it's not a statement. So in general, statement can be one of the following. क्या क्या पढ़ा था हमने? It could be either true, it could be false, or it could be ambiguous. Ambiguous मतलब needs some more explanation. Or a statement which is subjective. जनरल चीजें दी हुई है, जनरल है, क्लियर नहीं बताया हुआ, क्लियर कट नहीं है, एम्बिग्यूअस है बोलते हैं, तो अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है. वेयर एज अदर टू या तो सही होगी या गलत होगी. सो मैथमेटिक्स में हमने क्या सीखा था कि स्टेटमेंट इज एक्सेप्ट ओनली इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या तो खाली ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं. सो दैट इज व्हाट वी लर्न इन क्लास 9th. सो एग्जांपल 1 क्या है? Let's take general day-to-day life examples of mathematical statements and say whether it is true or false. पहला एग्जांपल है the sun orbits the earth. sun जो है अर्थ के चक्कर लगाता है. It's true or false? It's false. Why? क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले पता लगा लिया कि अर्थ जो है ऑर्बिट्स करती है, सन के चक्कर लगाती है. It's not the other way around. Very good. Another statement is vehicles have 4 wheels. क्या है ये? ट्रू है, फॉल्स है, ये क्या है? इट्स एम्बिगुअस. क्यों एम्बिगुअस है? दिस डिपेंड्स ऑन द व्हीकल टाइप, कि 4 व्हील होंगे या 2 व्हील होंगे या 8 व्हीलर्स. ट्रक्स में देखे ना कितने के व्हील होते हैं, और रॉकेट लॉन्चर में तो 60 100 तक व्हील्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रॉकेट साइज. सो वी कैन नॉट से कि व्हीकल है 4 व्हील्स. तो इट्स एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट. यदि वो बोलता है द कार हैव 4 व्हील्स देन इट इज ओके, तब तो ये ट्रू होता. Otherwise, ambiguous means statement is not clear. The next statement is the speed of light is 3 into 10 to the 5 kilometers per second. मतलब कि the speed of light is 3 lakh kilometer per second. True or false? Definitely is true. Why? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से फिजिक्स ने वेरीफाइड किया है. बहुत से फिजिसिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके बताया कि लाइट की स्पीड इतनी होती है, नहीं तो हमें मालूम ही नहीं था पहले. So that's this statement is we say it's true statement. एक और स्टेटमेंट है a road to Kolkata will be closed from November to March. कौन सी रोड? ये क्लियर है क्या इसमें? नहीं. रोड बंद होगी है, ठीक है, मार्च से नवंबर तक, नवंबर से मार्च तक बंद रहेगी, पर विच रोड? कानपुर से जाने वाली या भोपाल से जाने वाली? That means this statement is ambiguous, right? Not clear which road is being referred to. That is why it is ambiguous. Take one more example. All humans are mortal. Mortal मतलब नाश्वर हैं, means सबकी एक टाइम के बाद डेथ होती है. All humans. Is true or false? Is true. सबकी डेथ होती है. कोई अमृत नहीं पिया किसी ने कि लाइफ लॉन्ग जिंदा ही रहेगा हमेशा वो. Since every human being has to die sometime, that is why it is true. Example 2, let's take few example based on class 9th learning where you have to tell whether they are true or false. So these are mathematical statements again. Are you ready? Let's take example 1. All equilateral triangles are isosceles. ये true है false है? पहले समझ लें. equilateral triangle याद है जिसमें सारी साइड, वो ट्रायंगल जिसमें सारी साइड बराबर हो.
आइसोसलीस वो ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो भी इक्वल होंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसलीस, मींस ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसलीस भी होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। व्हाई? बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैव इक्वल साइड एंड देयरफॉर आर आइसोसलीस। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसलीस है। हम थर्ड की बात ही नहीं कर रहे, हम तो दो की बात करें। थर्ड यदि इक्वल है तो वेरी गुड। Let's take another statement. Some isosceles triangles are equilateral. Some of isosceles triangles are equilateral. Is it possible? Yes. Why? Because those isosceles triangles whose base angles are 60 degree are equilateral. यदि ये बेस एंगल, इन्हीं को बोलते हैं बेस है, ये बेस एंगल 60 हो जाए, तो ये एक 60 तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली 60 होगा, और ये 60 है, ये 60, तो थर्ड क्या होगा 180 माइनस 120, क्योंकि 60 प्लस 60 120, तो ये क्या बचेगा 60। जब तीनों एंगल 60 60 60 क्या हो गए तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। और यदि इक्विलेटर बन गया तो वी कैन से सम आइसोलिस ट्राइंगल्स जो होते हैं इक्विलेटर होते हैं, मींस वो आइसोलिस ट्राइंगल जिनके एंगल 60 हो, बेस एंगल 60 हो, वो आइसोलिस ट्राइंगल जो होते हैं ऑटोमेटिकली इक्विलेटर होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ट्रू। Let's take one more statement, mathematical statement. Statement is all isosceles triangles are equilateral. क्या ये कह सकते हैं? No, ये तो नहीं कह सकते. False, because third side not necessarily same in an isosceles triangle. Isosceles triangle कोई जरूरी नहीं है थर्ड साइड इक्वल हो या बेस एंगल 60 हो, ये हमेशा तो नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल केसेस थे ऊपर वाले में। जब थर्ड साइड भी इक्वल होगी तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या, थर्ड साइड इक्वल है, दैट मीन्स इंटीरियर एंगल क्या हो गए सारे 60 60। दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो 60 डिग्री एंगल बोला या थर्ड साइड बराबर, और ये ऐसा एक ही केस होगा, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। ओके, नाउ अनदर statement is some rational numbers are integers. Is it true or false? It's true. Why true? एक रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं p अपॉन q में, वेयर p एंड q क्या होते हैं इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेट्स से कोई भी इंटीजर लें, जैसे 3 लिया तो 3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स सारे इंटीजर्स को जो है बेसिकली दे आर रैशनल नंबर्स। तो सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो जो रैशनल नंबर p अपॉन q है आर इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर तो बहुत सारे हुए, तो उसमें से कुछ क्या होते हैं इंटीजर्स, ये ट्रू हो गया क्योंकि सब इंटीजर को हम 3/1 मीन्स रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, द अनदर स्टेट मीन्स सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो हमने कहा कुछ तो इंटीजर होते हैं कुछ इंटीजर्स नहीं होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। वाई ट्रू? जैसे कि एग्जांपल ले लें, हमने ये तो पढ़ ही लिया था p अपॉन q में रैशनल होता है, जैसे 3/2 है, ये रैशनल नंबर है बट इट इज नॉट एन इंटीजर, राइट। 3/1 तो इंटीजर हो जाएगा पर 3/2 इंटीजर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ट्रू होगा कि कुछ रैशनल नंबर तो इंटीजर होते हैं कुछ रैशनल नंबर नॉन इंटीजर, बोथ आर ट्रू। कैन वी से नॉट ऑल इंटीजर्स आर रैशनल? इज इट ट्रू और फॉल्स? इज फॉल्स। अभी तो हमने देखा 3/1 3, दैट मीन्स ऑल रैशनल नंबर्स, all मतलब integers are rational numbers, so not all integers are rational, this is false, is contradictory, that is why it is false. Take one more example. Between any two rational numbers there is no rational number. Is it true or false? याद आया 9th क्लास में हमने पढ़ा था कुछ ये रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स निकाले थे आपने। हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because there are infinite number of rational numbers between two rational numbers। और सिंपली ऐसे बोलो एक रैशनल नंबर r है एक ऐसे, तो हम कैसे निकालते थे, उनके बीच का मीन निकाले थे r प्लस एस डिवाइड बाई 2, फिर r प्लस एस डिवाइड बाई 2 आया और r के बीच में निकालना है तो फिर इन दोनों को ऐड करके उनके बीच का मीन निकालो। दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो समझ में आ गया, मैथमेटिक्स में हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स कहते हैं, याद आ गया? वेरी गुड। और यदि याद आ गया तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Number 3, if x is less than 4, which of the following statements are true? So हमको ये तीन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा true है, and we have to justify our answer. So let's take number 1. This statement is false.
why it is false? Because at x is equal to 3 which is less than 4, क्योंकि x 4 से कम होना चाहिए, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 2x we can write 2 into 3 that is 6. Is 6 greater than 8? No, it is not. That means 2x greater than 8 is false, right? Let's take second one. This statement is also false. This statement 2x less than 6 is false because x की वैल्यू 3.5 लेंगे which is less than 4, तो रखते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगी? It is 7. That means this is 7 is greater than 8. No, that means this is equation is also false. Right. Last वाले लेते हैं 2x less than 8. So ये दिया हुआ हमको. So इसको यदि 2 को इधर ले जाएं तो we can write 8 by 2. 8 by 2 को डिवाइड कर देंगे 4, और क्या लिख सकते हैं? x is less than 4. And this is what? X is less than 4. यही तो दिया हुआ था हमको. So therefore this statement is true. We can say this is same as x less than 4. Therefore the statement 2x less than 8 is true. Example 4. Restate the following statement with appropriate conditions so that they become true statements. इसका मतलब क्या हो रहा है? Let's take one example. फिर समझ में आ जाएगा. If the diagonals of the quadrilateral are equal, then it is a rectangle. क्या मतलब हुआ? A, B, C, D यदि हम एक डायग्राम लेते हैं, so this is a quadrilateral और इसकी डायगोनल इक्वल है, then वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. Is it okay? या और कोई बेटर अच्छा तरीका है इसको लिखने का? Yes, better is if the diagonals of a parallelogram are equal. So rectangle, ये देखो ये parallelogram है. If the diagonals of the parallelogram equal, then it is a rectangle. तब वो रेक्टेंगल होगा. डायगोनल तो इक्वल है और पैरेललोग्राम वो पैरेललोग्राम, अच्छी हिंदी में मतलब क्या हो रहा है? वो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स जो है इक्वल है, तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. तो कोई बोले स्क्वायर भी हो सकता है. यस, स्क्वायर भी हो सकता है, बट स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज ट्रू, whereas this is not always true और वो क्लियर नहीं है. तो दिस इज द बेटर वे ऑफ राइटिंग. So we are restating the statements. The another statement is a line joining 2 points on 2 sides of the triangle is parallel to the third side. ये हमने पढ़ा ही था. ये ट्राइंगल है, ये उसकी ऑपोजिट साइड है AB और AC. इस पे 2 पॉइंट है, इनको यदि जोड़ दें तो थर्ड साइड के पैरेलल होते हैं. ये पढ़ा था. ये कुछ और पढ़ा था. वो क्या पढ़ा था कि पॉइंट E एंड F जो है, जो ये दो साइड्स हैं उनके क्या मिड पॉइंट्स हैं. तो इसमें कहीं मिड पॉइंट तो आ नहीं रहा. That means this statement is incorrect. So write it properly. So it can be written as a line joining the midpoints of 2 sides of the triangle is parallel to the third side. Now it is okay. This is called restatement. Take one more example. Root p is a irrational for all positive integers p. जब p positive है तो हमेशा root p क्या होगा? Irrational होगा. Let's take some example. 4 is integer. Root of 4 is 2. बट 2 इज क्या है? इरेशनल है. नहीं, ये तो रैशनल नंबर हो गया. इसका मतलब ये गड़बड़ है. और क्या ले? रूट 2. यस, 2 इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और उसका जो वैल्यू निकले 1 पॉइंट. यस, इट इज इरेशनल. एक और एग्जांपल. 6 के फैक्टर क्या लिखता है? 3 into 2. दैट मीन्स अगेन मैं निकालूंगा तो इरेशनल आएगा. तो इसको बेटर वे में हम कैसे लिख सकते हैं? आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो, वी कैन राइट root p is irrational for all primes. p means p मतलब जो नंबर है जो इनसाइड द रूट है वो हमेशा क्या हो? प्राइम नंबर हो. या all positive integers p which are not a perfect square. वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो. जैसे यहाँ 4 है तो इसका 2 into 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. 6 तो 2 तो pm प्राइम नंबर ही है. जैसे 6 है, 6 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि देखो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 3 into 2 which is not, या तो 2 into 2 होता तो 4 होता, या 3 into 3 होता 9 होता. तो इसके जो फैक्टर्स आए परफेक्ट स्क्वायर नहीं आए. तो यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और प्राइम हो तभी ये रैशनल आएगा आंसर, तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती. तो इसको हमने मॉडिफाई किया, रीइंस्टेट किया इस तरीके से. टेक वन मोर एग्जांपल. ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रियल रूट्स. सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रियल रूट्स होती हैं. इज इट करेक्ट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसके चलो हम फैक्टर्स निकालते हैं, एंड स्प्लिट मेथड से हमें निकाला, तो ये 2 रूट्स आई, राइट. बट कुछ केसेस के अंदर रूट्स क्या हो सकती हैं? हमने ये देखा था 2 या 2 सिमिलर रूट्स हो सकती हैं.
या एक ही रूट हो सकती है, पर दो से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। सो हमको इस इक्वेशन को यदि करेक्ट फॉर्म में लिखना है तो हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उससे दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। दो से ज़्यादा नहीं, दो तो हो सकती हैं पर दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बेटर वे ऑफ राइटिंग इज ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट टू रियल रूट्स, मैक्सिमम टू रियल रूट्स। दैट इज अ बेटर स्टेटमेंट और रीस्टेटमेंट ऑफ द above statement. Fair enough. Example 5 है, given that Bijapur is in the state of Karnataka and suppose Savannah lives in Bijapur, in which state does she lives? तो इस टाइप के जो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डिटेक्टिव रीजनिंग। डिटेक्टिव रीजनिंग मीन्स जहाँ पे डिटेक्टिव की तरह, जासूस की तरह आप क्या देखते हैं, यू अज्यूम सर्टेन थिंग्स, you premises something and you do some hypothesis, you take some hypothesis, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सो assumption लो, hypothesis लो, premises लो, सब एक ही चीज़ है बेसिकली। कहीं से तो स्टार्ट करना, तो यू हैव टू बिकम अ जासूस। तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स जहाँ पे भी होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ जासूस। तो अभी यहाँ देखो, इस दोबारा पढ़ते हैं इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल इज गिवन दैट बीजापुर इज इन स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड सपोज सवाना लिव्स इन बीजापुर, इन विच स्टेट डज सवाना लिव्स। यदि बीजापुर जो है कर्नाटका स्टेट में है और सवाना जो है बीजापुर में रहती है, तो क्या सवाना कर्नाटका में रहती है? कर्नाटका में तो रहेगी, यही तो आंसर है। तो हमने कैसे अज्यूम किया, कैसे लिखते हैं? Here we have two premises, दो assumptions लिए हुए। क्या लिया हुआ है? बीजापुर is in state of Karnataka, this is one premise, right? ये हमने premises ले रखा है। दूसरा premise क्या लिया है? सवाना जो रहती है lives in बीजापुर में रहती है। तो इन दोनों के बेसिस पे, on the basis of these two condition, premises को condition बोलते हैं, ये दो conditions हैं। तो इन दो condition के बेसिस पे आप जासूस हैं and you have to solve this problem. From these two premises we deduce, अब ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं that सवाना lives in state of कर्नाटका। तो इस टाइप की रीजनिंग को, या जहाँ जहाँ डिफरेंट कंडीशंस दी हों उनको हम एज अ जासूस बन के, और वी कॉल इट अ डिटेक्टिव रीजनिंग, वी कैन सॉल्व इट। सो वी हैव सॉल्व्ड इट। Let's take one more example. By same detective reasoning we have to solve. Given that all mathematics textbooks are interesting, and suppose you are reading a mathematics textbook, what can we conclude about the textbook you are reading? So simple है, तो बहुत मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो वी कैन राइट यूजिंग द टू premises या टू कंडीशंस या टू hypothesis, we can conclude और we can deduce, निकाल सकते हैं that you are reading an interesting टेक्स्ट बुक। एक कोई इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, वो मैथमेटिक्स की हो किसी की हो। गुड, लेट्स टेक वन मोर। गिवन दैट y is equal to minus 6x plus 5 and suppose x is equal to 3, what is y? दैट मीन्स ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। सो व्हाट इज y? तो इन दोनों के बेसिस पे दो कंडीशन दी है, इसके बेसिस y तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? x की वैल्यू इसमें रख दो, लेट्स डू इट एंड फाइंड आउट द y। So we can given the two hypothesis, we can say y is equal to minus 6, x की वैल्यू रख दी प्लस 5। So y की वैल्यू कितनी आ गई? minus 13। So we have used these two conditions. तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस या स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं तो वी कॉल दिस एज डिटेक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल 8 लेते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड सपोज AD इज इक्वल टू 5, AD की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो राइट इट डाउन। AB इज इक्वल टू 7, AB कौन सा है? ये वाला 7 सेंटीमीटर। बट कैन यू कंक्लूड अबाउट द लेंथ ऑफ DC एंड BC? DC और BC आप निकाल ही सकते हो, सिंपल है, पैरेललोग्राम है। एक कंडीशन, दो साइड दी हुई है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगे? उनके पैरेलल होंगे और एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी। ये तो हमको मालूम है, पर हमने किया क्या? हमने अपने माइंड में यूज किया डिटेक्टिव रीजनिंग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एज ABCD is a parallelogram, therefore it holds all properties of parallelogram। और प्रॉपर्टीज क्या है? opposite sides and opposite angles are equal and opposite sides are parallel। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये ऑपोजिट साइड की दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होंगी, और ये लाइन, अपोजिट लाइंस क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब हमको इतना मालूम है
तो वैट इनके बेसिस पे वी कैन रिड्यूस, वी कैन फाइंड आउट BC क्या होगा, इसका ऑपोजिट 5 सेंटीमीटर होगा, सिमिलरली DC क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा. So we have used deductive reasoning by solving this problem. Let's take one more example. Example 9. Given that root P is irrational for all prime P, and suppose this number is a prime, what you can conclude about root of this number? So we can say by given condition, we can conclude that root this number, root of 18,423 is a irrational number. So we have concluded, we have used, क्योंकि ये p जो है प्राइम नंबर है और उसका रूट क्या होता है, इरेशनल, दैट इज व्हाट इट इज गिवन. सो वी हैव प्रूव्ड इट एंड वी हैव रिटन दैट वे. ये कंक्लूड कर लिया हमने. सो हमने इन सारे जो एग्जांपल्स जितने भी हमने सॉल्व किए अभी तक, तो उसमें हमने क्या देखा, वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव टेकन सर्टेन हाइपोथेसिस और कंडीशंस और प्रीमाइसेस, वेदर इट आर ट्रू और नॉट ये हमने उसमें नहीं क्वेश्चन नहीं किया, राइट, कि वो करेक्ट है कि नहीं है. जैसे कि यही एग्जांपल है ऊपर वाला, रूट पी इज अ रैशनल वेयर इरेशनल वेयर पी आर प्राइम. हमने माना ये कंडीशन दिया और उन्होंने कहा ये नंबर एक प्राइम है, हमने चेक भी नहीं किया और हमने बोला कि यदि उसका भी रूट लोगे तो वो भी प्राइम होगा, और यही हमने लिख दिया, कंक्लूड कर दिया, इज इरेशनल नंबर. बट इफ यू सॉल्व इट 18423 कैसे सॉल्व करोगे, देखो 88 + 1 9 और 9 + 4 कितना हुआ 13, 13 to 15, 15 3 18. If it is 18 that means division by 3, so it is not a prime number. और हमने कह दिया and we concluded this कि root of this is irrational, it's not a prime number. Divide by 3 और किससे हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, राइट. That means this is not a prime, that means this is not a irrational number. But we concluded, क्यों कंक्लूड किया, बिकॉज वी डू नॉट क्वेश्चन मार्क द हाइपोथेसिस whether they are true or not. We assume they are true and then we applied deductive reasoning. ये जो रीजनिंग है हमने अप्लाई कर दी. तो इंपॉर्टेंट चीज डिडक्टिव रीजनिंग में जब आप जासूस बनते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान देनी होती है जासूस में, कि वी यूज द करेक्ट प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, हम करेक्ट रीजनिंग की प्रोसेस को फॉलो करें, right? And if we read from end to start, then also logic stands. Example, ये this is irrational. If ये irrational है, इसका आंसर irrational है, that means वो नंबर क्या होगा, प्राइम होगा. या ऊपर वाले हम देखें कि ये DC 7 सेंटीमीटर है और CB 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऑपोजिट साइड भी यदि 5 और 7 रेस्पेक्टिवली हैं, तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा. यदि हम नीचे से ऊपर पढ़े या ऊपर से नीचे पढ़े तो हमको आंसर एक ही मिलना चाहिए. तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, बीच में कोई गैप नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको. सो कंजेक्चर्स, थ्योरम्स, प्रूफ्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब हम समझ गए. तो अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कैसे कंजेक्चर्स को बनाया जाता है या डेफिनेशंस बनाई जाती है, थ्योरम्स बनाई जाती हैं, एंड हाउ दे आर प्रूव्ड इन अ लॉजिकल वे बाय यूज ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग. मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटीज लाइक दिस, लेट्स कंसीडर 4 सर्कल्स, 4 सर्कल बनाओ सच दैट कुछ कंडीशंस है उसमें. पहला सर्कल बनाना है, फर्स्ट सर्कल हैज 1 पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस. पहले सर्कल पे हमने 1 पॉइंट लिया, दूसरे सर्कल पे हमने 2 पॉइंट लिए, तीसरे सर्कल पे हमने 3 पॉइंट लिए एंड सिमिलरली चौथे सर्कल पे हमने क्या किया, 4 पॉइंट लिए. तो हमने ये 4 सर्कल बनाए. अब एक और काम किया, काम ये किया, ये जो पॉइंट हैं दिए हुए हैं सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जितना मैक्सिमम वे में पॉसिबल है. तो लेट्स कनेक्ट ऑल. तो देखो यहाँ तो कुछ कनेक्ट करने का था ही नहीं, 1 को इससे कर सकते थे, 3 को हम, दिस इज द मैक्सिमम वे वी कैन कनेक्ट एक दूसरे से, मीन्स 1 पॉइंट 2 को कनेक्ट हो रहा है. अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा तरीके से हो गया, 1 पॉइंट किससे कनेक्ट हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, मीन्स जहाँ 4 पॉइंट है तो प्रीवियस पॉइंट कोई भी एक पॉइंट 3 चीज़ों से कनेक्ट हो रहा है, 3 पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है. अब चलो एक और काम करो, इनकी नंबरिंग दे दो. जो ये एरिया मैंने 1, इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको, 1 और 2 में, इसने 1 2 3 और एक 4 पार्ट्स में. इसमें कितने किया देखो, राइट नंबर्स 1 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8, इसने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, एंड नाउ इनमें हमने क्या किया, ये जो हमने डिवाइड किए पार्ट्स को, ये रीजन्स को,
इसको हम टेबल ऑफ फॉर्म में लेते हैं। दैट मीन जहाँ एक पॉइंट है वहाँ पे एक एरिया है, जहाँ 2 पॉइंट हमने लिए सर्कमफ्रेंस में वहाँ 2 एरिया है, जहाँ 3 थे वहाँ 4 एरिया है, जहाँ 5 थे वहाँ 8 है। इसको टेबल ऑफ फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स राइट इट डाउन। सो द रिजल्ट विल बी समथिंग लाइक दिस। नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 थे तो एक रीजन बना, 2 थे तो 2 रीजन बने, 3 थे तो 4 बने, 4 थे तो 8 बने। यही हमने देखा। तो यदि नंबर ऑफ पॉइंट 5 6 7 यदि मैं लेता तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स कितने रीजन में डिवाइड होता सर्कल? कुछ आइडिया लगा सकते हैं? सो कैन वी हैव समथिंग? यस, मुझे एक चीज दिख रही है। इफ नंबर ऑफ पॉइंट इज n तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने होंगे? 2n-1। क्या मतलब हुआ? यदि देखो पहले में लेते हैं n की वैल्यू 1 है, एक पॉइंट है, तो 2 की पावर n 1-1 क्या हुआ? 0। 2 की पावर 0 मीन्स क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1। यस करेक्ट। सो n इज इक्वल टू 2, तो ये 2-1 हो गया 1। 2 की पावर 1 मीन्स 1 2 सॉरी, तो 2 ही आ गया। यहाँ 3 लिया, 3-1 2, 2 2 ज़ा 4 4 हो गया। ऐसे यदि ये 4 होता, 4-1 3, 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 हो गया। So that means, so n is equal to, we can say when number of points are n, the number of reasons will be 2 की power n-1। And similarly we can calculate 5। तो 5 पे क्या आएंगे? निकाल लो, 2 की पावर 5-1 तो कितना होगा? 4। 8 2 ज़ा 16, ये आ गया। यदि ये 16 लिख दो, 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 पे लेंगे, 2 की पावर 6-1, 2 की पावर 5 रह गया, और कितना होगा? 16 को मल्टीप्लाई और कर दो 2 से 32। सो यहाँ कितने होंगे? 32 हो गए। तो इस टाइप की जो हमने ये निकाला n इज इक्वल n फॉर नंबर ऑफ पॉइंट n, द टोटल नंबर ऑफ रीजंस विल बी 2 की पावर n-1, मतलब इतने रीजन सर्कल पे बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एन इंटेलिजेंट गैस। और जब इंटेलिजेंट गैस जो हमने डेफिनेशंस ये यूलिप ने बनाई थी, ऐसी ही तो बनाई थी उसने, तो उन इंटेलिजेंट गैसेस को हम कंजक्चर पोस्टुलेट्स बोलते थे, जिसको हम देखो वैलिडेट करते जा रहे हैं ऐसे करके, राइट? कंजक्चर बन गया हमारे। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल कंजक्चर वी हैव सेड। इज इट करेक्ट? नो। यदि आप कैलकुलेट खुद बैठ के बनाओगे, 6 पॉइंट रखोगे, एंड इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द रीजंस जैसे हमने प्रीवियस में अभी किए थे, कनेक्ट किया था, तो यू विल फाइंड इट विल बी 31 नॉट 32। और सेम वे में यदि मैं 7 का इस फॉर्मूले से लूँ तो इट इज कमिंग 64, 32 इंटू 2 64। और यदि मैं प्रैक्टिकली बनाऊंगा तो व्हाट आई विल फाइंड, it will divide 7 point will divide the circle in how many region? 57। that means जो मैंने ये कंजक्चर लिया जिसको मैं अभी तक इंटेलिजेंट गैस बोल रहा था, इट इज अ गैस विच इज इनकरेक्ट। एंड यदि एक भी ऐसा मेरे को नंबर मिल गया जिस पे ये चीज मेरा जो गैस था वो गलत है, तो दैट मीन जो मैंने अजम्पशन लिया था, कंजक्चर लिया था, वो मेरा गड़बड़ हो गया। और इस टाइप की चीजों को इज एन काउंटर एग्जाम्पल, याद है ना काउंटर एग्जाम्पल? यस। सो वी से at n is equal to 6 we found the counter example to this conjecture। जो हमने assume किया था उसका counter मिल गया हमको। and if you have one counter, that means this statement is, or this conjecture is untrue। so we have disproved a statement। statement क्या थी कि for n number of point on a circumference, it will divide the circumference or the complete area of the circle into how many region? 2 की power n-1। and by this single one, दूसरा तो हमने बाद में किया आपको बताने के लिए, by this single one which is a counter example, we disprove the conjecture or a statement। so this is called disprove of a statement। क्लियर है? ओके। एक और हमने पढ़ा था कि 1 + 2 + 3 is plus up to 9 means नेचुरल नंबर्स का सम यदि मैं करूं अप टू n, तो टोटल सम क्या होता है? n + 1/2। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर क्लास 9 में। और व्हाट वी नीड इज अ प्रूफ व्हिच एस्टैब्लिशेस ट्रू बियॉन्ड डाउट। तो इसका भी हमने प्रूफ करके वैसे देखा था। एंड स्टिल यदि मैं इसको एक्सेप्ट तभी करूंगा कि 1 से लेके n नंबर nth पोजीशन तक इंटीजर्स का यदि सम लूं ये होता है, तो इसका मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। मैथमेटिशियन ने प्रूफ किया, उसी को तो हमने प्रूफ किया। तो ये जो कंजक्चर, ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी व्हेन इट इज प्रूफ बियॉन्ड डाउट, मतलब कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि एक भी हमको काउंटर एग्जांपल जैसे स्टेटमेंट का मिल गया 2n-1,
तब ये मेरी सारा जो हमने एज्यूम किया था तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एक एग्जांपल है, एक सर्कल लो, उसके बाहर एक पॉइंट रखो, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस सर्कल को टेंजेंट कहाँ कट करेंगे, टच करेंगे। टेंजेंट मतलब ये मालूम है ना, जो कि इस सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करती है, दोज आर कॉल्ड टेंजेंट। और इससे यदि मैं रेडियस सेंटर तक एक रेडियस पे ड्रॉ करूँ तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये आपने 9th क्लास में आई थिंक पढ़ा था, राइट। तो दीज आर कॉल्ड टू टेंजेंट्स, ओके। और यदि ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी से यदि मैं दो टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट हमेशा क्या होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये किसी ने बोला है, ये कंजेक्चर है, राइट, या एक्सियम बोलो। एक पॉइंट से एक सर्कल पर दो लाइन ऐसे ड्रॉ करूं विच आर टेंजेंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो मैं किसको कैसे चेक करूंगा, सिंपल है, तो सिंपल सा मैं स्केल रखूंगा, मेजर करूंगा कितना है, 3 to 9 मीन्स 9 - 3 6। ये 6 सेंटीमीटर, इसको भी मेजर किया 6 सेंटीमीटर, मैंने फाइंड आउट किया, पता लगा यस दे आर बोथ इक्वल। इसका मतलब मैंने क्या किया, जो एक्सरसाइज की मैंने स्केल रख के नापा, इट्स कॉल्ड वैलिडेटिंग। सो वैलिडेट किया कि जो वो कह रहा है कि ये बराबर होंगी, है कि नहीं, मैंने चेक कर लिया। So we say the argument or the statement given is correct and we have a valid argument for that. Valid argument मतलब कि हाँ हमने मेजर करके देखा है कि ये बराबर होती है। So we can say based on that valid argument कि PQ, ये PQ और PR एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है, right? So there are certain steps which you have to follow when you have been asked to prove something. किसी चीज को आपको प्रूव करने को बोला जाए तो आपको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। एंड व्हाट आर दोस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तब अच्छे समझ आएंगे। सो एग्जांपल 10 इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर का सम रैशनल नंबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। और हमको क्या फॉलो करना है, हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं, सर्टेन स्टेप्स, क्योंकि यदि हम वो स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तब हमारा कहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। So let's prove it. And then how to prove it, that we are learning. Let's say x and y are two rational numbers. दो rational number है क्योंकि हमको दो का निकालना है. And suppose x is equal to m upon n और y is equal to p upon q because they are rational numbers. ऐसे लिख सकते हैं. Then ये rational number तभी होंगे when m, n, p, q सारे के सारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और जो डिनोमिनेटर है कौन कौन से, n and q are not zero. यदि ये n and q जीरो ना हो और जो सारे नंबर्स एम पी एन एम पी क्यू ये सारे के सारे इंटीजर हों, देन वी कैन से सेफली कि x और y क्या है, टू रैशनल नंबर्स हैं। हम ये अज्यूम कर सकते हैं। तो वी अज्यूम्ड इट कि x y दो रैशनल नंबर हैं, उनकी फॉर्म ये है जहाँ पे m n p q r क्या है, इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर्स उनके जीरो नहीं है। If that is the case, then the sum of two rational numbers, sum of ये ना, so we can say x plus y, this is a sum, would be क्या होगा, m upon n plus p upon q. Let's solve it. ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या होगा, दोनों ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई. Write it that way. So mq plus pn divided by nq. Correct? Okay. As the sum and product of two integers, ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर. As the sum and product, यहाँ किया है, देखो ये दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर दो इंटीजर का सम भी होता है, एम क्यू एक इंटीजर हुआ, ये एक इंटीजर, इनका सम भी है। तो क्या पढ़ा था हमने, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, यदि सम और मल्टीप्लिकेशन दो इंटीजर का इंटीजर होता है, देन वी कैन से, क्या कह सकते हैं, वो ये ऊपर वाला नंबर एम क्यू प्लस पी एन, ये तो मल्टीप्लिकेशन खुद इंटीजर है, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर मीन्स इंटीजर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और यदि ये दोनों इंटीजर्स हैं और हमको एक और चीज मालूम है कि n जो है वो और q दोनों डिनोमिनेटर जो यहाँ हमने लिए थे वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब n और q का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, वो भी नॉन जीरो होगा, ये हम बोल सकते हैं। इफ दैट इज द केस, वी कैन से x प्लस वाई, ये जो नंबर है, जो आंसर ये आया कि हमने यहाँ क्या प्रूव किया, ये ऊपर नीचे वाले इंटीजर्स हैं और n q इंटीजर ये क्या है, जीरो नहीं है, तो वी कैन से x प्लस वाई इज अ रैशनल नंबर सिमिलर टू जैसा हमने ऊपर किया था। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो वी कैन से हेंस वी हैव प्रूव्ड इट।
अब इसमें एक देखने वाली चीज़ है, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं तो इसमें कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। इसका क्या क्या चीज़ के एनालिसिस किए हैं कि वी यूज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जब हमने स्टार्टिंग एजम्पशन लिए तो हमने यहाँ पे लिया ये एक एक्सटर्नल रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या था, हमने यूज़ किया था डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, जो हमने प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, राइट। और हमने क्या किया, वी यूज़ अगेन यूज़ नोन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, कि दो इंटीजर का सम या मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होता है, उस प्रॉपर्टी को भी हमने यूज़ किया। और लास्ट में हमने क्या यूज़ किया, फिर अगेन ये जो ऊपर वाला हमने यूज़ किया कि डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स को हमने यूज़ किया। तो हमने दो एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी लर्नड डेफिनेशंस को या स्टेटमेंट्स को हमने यूज़ करके अपना जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया और इस तरीके से प्रूव किया। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमने पास में लर्न किया वो प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं और एक सीक्वेंस वे में जाते हैं और वी प्रूव्ड इट। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं। द एग्जांपल इज एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द फॉर्म 6k + 1 और 6k + 5 वेयर k इज एन इंटीजर। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई भी प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ा है उसकी हम ये बोल सकते हैं, उसकी फॉर्म ये होगी 6k + 1 से और 6k + 5 से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं वेयर k इज सम इंटीजर। वो ये कोई भी एक इंटीजर हो, वैल्यू हो सकती है, k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे प्रूव करते हैं, तो लेट्स प्रूव इट। सो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 क्या क्या होंगे, 5, 7, 11, 13 हम कह सकते हैं, या सो हम बहुत सारे होंगे। तो हम इसको लेट से p इज अ प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 3, देन इट कुड बी आइदर, कैसे लिखा सकता है, ग्रेटर देन 3 है तो यदि 5 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट कुड बी रिटन 3k + 2, 3k हो +2 क्योंकि 5 चाहिए हमको, वेयर k इज एन इंटीजर। और क्या लिख सकते हैं 5 को फॉर्म में, आई कैन राइट 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, ऐसी 4k + 4, 4 लिख दूंगा तो 4 बाहर आ गया तो ये तो सेम ही हो गया, तो आई कैन राइट दिस वे। और 7 को लिखना है, मैं और कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3, 5k + 4 ऐसे लिख सकता हूँ। और आई कुड राइट 7 के लिए और आगे बढ़ना इंटीजर्स, आई कुड राइट 6k, 6k + 1, 6k + 2, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, राइट, कि p एक प्राइम नंबर है विच इज ग्रेटर देन 3, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस वेयर k इज एन इंटीजर। यदि k देखो यहाँ 1 है, 0 है तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2। यदि k 1 है, क्योंकि 0 तो इंटीजर वैसे होता ही है, और k यदि 1 लेता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, k = 1, ये 3 हो जाएगा, +2 5, तो मीन्स 5 आ गया, ग्रेटर देन 3 है। सेम वे में आई हैव अज्यूम सर्टेन थिंग्स एंड लेट्स चेक ऑल दीज थिंग्स। तो 4k + 2 ये मैं अज्यूम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें से मैं यदि 2 कॉमन बाहर ले लूँ, दैट मीन्स द कंप्लीट फिगर जो अंदर का बचा 2k + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो यदि कोई नंबर प्राइम नंबर तो ऐसे नहीं होता 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो इट इज़ नॉट एन इंटीजर। सिमिलरली 6 में से 2 बाहर निकाल सकता हूँ, तो 3k + 1 ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 प्राइम इसका फैक्टर हो गया। और कौन कौन सकते हैं, सेम वे में 6k + 3 नहीं हो सकता, 6k + 4 नहीं हो सकता, तो these things I cannot assume, so I am removing those things। 6k भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 itself है इवन नंबर है, राइट। सेम वे में 5k भी नहीं होता क्योंकि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमने देखा इतने सारे जो हो सकते हैं, इन सबको मैंने जो बचे उनको मैंने यहाँ लिख लिया टेबुलर फॉर्म में, बिकॉज इट इज इजी टू 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 राइट। अब मैं उनकी वैल्यू निकालता हूँ और k मैं बोलता हूँ, अज्यूम करता हूँ k इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 बिकॉज इट्स एन इंटीजर, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज मुझे जस्ट ये प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है हमको, कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 जो है मैं उसको 6k + 1 या 6k + 5 से मैं लिख सकता हूँ। तो ये और ये तो बची गए प्लस उससे पहले वाले, सो लेट्स राइट डाउन। तो मैं k = 1 पर इन सब की वैल्यू डालता हूँ। कैसे निकालूंगा, k 1 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 + 2 5, ऐसी 4 + 1 5, 4 + 3 7, तो आई विल राइट डाउन। तो आई हैव रिटन ऑल द वैल्यूज, ठीक है। एंड सेम वे में k = 22 होगा तो इन सब की रेस्पेक्टिव वैल्यूज होंगे, तो राइट इट डाउन। सो आई हैव रिटन ऑल द वैल्यूज। अब इसमें से देखो कौन कौन से प्राइम नंबर्स नहीं है, तो यू कैन आइडेंटिफाई। पहले रो में यदि मैं जाऊं तो 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, बाकी सब प्राइम है। सेम वे में बाकियों को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ, मीन्स या कट कर देता हूँ।
तो कट करने में थोड़ा सा देखने में मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कट की जगह कलर कर देता हूँ बेटर। नाउ इट लुक्स बेटर। तो जो रेड है दोज आर नॉट प्राइम नंबर्स। सो जो रिमेनिंग बचे वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। एंड ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम, ऑल आर ग्रेटर देन 3, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ देखते जाओ बढ़ते जा रहे हैं। सो हमको अज्यूम क्या करना था कि हमको ये बताना था 6k+1 और 6k+5 जो हैं प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये तो प्राइम नंबर्स के बाद एक टाइम के बाद k इज इक्वल टू 4 हुआ, इधर को 25 हो गया, k इज इक्वल टू 5 में ये भी 25 हो गया। दैट मीन्स मैं प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, बस मैं कहाँ तक कुछ ही प्राइम्स को कर पा रहा हूँ। जब k इज इक्वल टू 4 हो जा रहा है तो ये प्राइम नहीं हो रहा है। वेर 6k+5 में जब k इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है वो प्राइम नंबर नहीं हो रहा है। वेर इज इन अदर केसेज ऑल्सो, जैसे ये है, यहाँ पे क्या हुआ, एक केस में यहाँ प्राइम आया, यहाँ है, यहाँ मतलब अल्टरनेट आ रहा है। सो इसमें कंटिन्यूस 2 आए, फिर प्राइम नहीं आया, फिर 2 आए, मे बी फिर कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। सो आउट ऑफ दीज, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम विच आई हैव और विच यू हैव फाइंड आउट। तो हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन जो हमने ये एक्सरसाइज की, what we have done, we could say, क्या कह सकते हैं, we can say that every prime number greater than 3 will be of the form 6k+1 or 6k+5। ये क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं where k is some integer, यहाँ पे भी लिखा है ना some integer, means not all integers। देखो ये 4 पे काउंटर निकला है और इसका 5 पे काउंटर निकला है। So we have to modify it. We have to say कि every prime number greater than 3 which will be of the form 6k+1 or 6k+5, वो कहाँ से निकाला, यहाँ से जो हमने एक्सरसाइज की, where k is some integers, not all integers. Okay, so we can say we have proved it. So we have followed a particular sequence and then we have proved it. तो हमने एक assumption से स्टार्ट किया, assumption को सॉल्व किया और उसके बेसिस पे हमने अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। So you must have noticed that we have arrived at a conclusion by eliminating different options. तो हमने बहुत सारी चीज elimination method किया, ठीक है, and that is why this method is sometimes referred to as a proof by exhaustion. तो जो हमने ये मेथड फॉलो किया प्रूव करने के लिए उसको मेथड ऑफ एग्जॉशन बोलते हैं। एग्जॉशन मीन्स थक गए, पूरी जान निकल गई, तो यू हैव एग्जॉस्टेड। सो प्रूव बाय एग्जॉशन मीन्स वी हैव यूज्ड ऑल व्हाट वी लर्नड, बहुत सारे कैलकुलेशन किए, सो दैट इज कॉल्ड प्रूव बाय एग्जॉशन। तो याद रहेगा। नाउ वी हैव गिवन अ थ्योरम एंड थ्योरम को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। एंड थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम की उल्टी। कन्वर्स मतलब उल्टा। तो पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा क्या होगा, इफ इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। If in a triangle the square of the length of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side, ये first side है हमारी, opposite angle क्या हुआ, ये is a right angle triangle, तो ये right angle triangle होगा। So प्रूफ में हम लिखते हैं लेट्स ABCD satisfy the, ये हमारा ट्राइंगल है ABCD ट्राइंगल, वो हाइपोथेसिस जो ऊपर दी हुई है उसको मानता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। where AB क्या है, परपेंडिकुलर, और D क्या है, इस दिस साइड बेस ऑफ इस ट्राइंगल का, ठीक है, ओके। और हमको प्रूव ये करना है कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हाइपोथेसिस को पाइथागोरस को फॉलो करता है तो बी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ काम करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन बी डी परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे बी डी, सच दैट, तो बना दो, बना दी, सच दैट बी डी की जो लेंथ है इज इक्वल टू बी सी के बराबर है। और फिर क्या करेंगे, ए को डी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो लेट्स ज्वाइन इट, ये दोनों हमने लाइन बराबर ली, ये 90 डिग्री रखा, तो हमने क्या बना दिया, ए बी डी एक ट्राइंगल बना दिया, राइट। और किस टाइप का ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स उसमें एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होता है। गुड, सो वी कैन से कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्राइंगल जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, इट सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। और यदि पाइथागोरस थ्योरम जो करता है
तो जिसमें ए डी उसकी हाइपोथेसिस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आई कैन राइट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी, मैं लिख सकता हूँ। और यदि मैं लिख सकता हूँ तो इसमें एक चीज़ और देखो कि हमने क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर है, हमने बनाई ऐसी कंस्ट्रक्ट किया, तो बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट बी सी। सो इसमें हमने बी सी लिख दिया, तो इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 में देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और 1 में देखो ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वेशन की सेम है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर जो होगा क्या होगा, वी कैन राइट ए डी स्क्वायर के। और यदि ये दोनों स्क्वायर बराबर हैं तो मैं इसका ये हटा दूँ स्क्वायर, तो क्या बचेगा, द पॉजिटिव जो पार्ट बचेगा, द पॉजिटिव ऑफ ए डी एंड ए सी, तो मीन्स ए डी और ए सी दोनों क्या हुई, बराबर। ये हमने प्रूफ किया यहाँ पे। और यदि ये प्रूफ किया इन दोनों ट्राइंगल में, और ध्यान से देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ए बी क्या है, इस कॉमन। तो ये ट्राइंगल के अंदर यदि ये कॉमन है, तो अब देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, और इसकी भी तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो बाय आई कैन से बाय विच रूल, बाय एस एस रूल। कौन सा रूल है, कॉन्ग्रेंट रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल येलो और वाइट मीन्स ए डी बी और ए बी सी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट। और यदि कॉन्ग्रेंट है दैट मीन्स ये 100% एक दूसरे के सिमिलर है। एंड इफ दे आर सिमिलर, यदि ये एंगल हमने 90 बनाया तो इस साइड का ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंगल राइट एंगल होगा या 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आपने क्या देखा, जब हम प्रूव कर रहे हैं तो वी हैव फॉलोड अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में हम एक पर्टिकुलर फ्लो में चलते हैं और चीज़ों को प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोल देंगे बिकॉज ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, वो पाइथागोरस फॉलो करता है तो उसकी ऑपोजिट का एंगल 90 डिग्री होगा, नो। तो हमने कुछ चीज़ें बनाई, कंस्ट्रक्ट की, और हमने अपने कंस्ट्रक्ट किए चीज़ों क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने बनाया है, हम प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये वो है। और फिर हमने कहा जो हमने बनाया वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, और यदि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है क्यों, मैथमेटिकली प्रूव किया। और जब हमने प्रूव कर दिया तो हमने कहा ये एंगल 90 होगा। तो दिस इज द वे द थिंग्स आर प्रूव्ड। सो हम प्रूव करना सीख गए स्टेटमेंट्स को। अब मैथमेटिकली क्योंकि हमको पढ़ना है तो वी हैव टू नेम द स्टेटमेंट्स, तो दैट इज कॉल्ड नेमिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। कैसे नेम करते हैं, सो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दैट द स्टेटमेंट इज इट रेन्स इन दिल्ली ऑन सितंबर 1st 2005 एंड इट इज डोनेटेड बाय पी। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। कैसे डिनोट करेंगे पी से, पी इज टू, ऐसे दो साइन लगाएंगे, इट रेन्ड इन दिल्ली ऑन 1st सितंबर 2005। तो हम ऊपर जो हमने सेंटेंस ऐसे लिखा है, तो यदि हम इस तरीके से लिखें, इसका मतलब ये होता है कि P और ये दो डबल डॉट का मतलब ये है कि P is an statement and statement is like this. Similarly, we can have other statement like, ऐसे ही लिख सकते हैं, किसी को P बोला तो किसी को हम Q बोल सकते हैं। लाइक Q स्टेटमेंट क्या है, यदि मैं लेफ्ट में देखूँ Q स्टेटमेंट को बोलेंगे ऑल टीचर्स आर फीमेल। लाइक R में हमने बोला एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज माइक्स डॉग्स हैव अ ब्लैक टेल। या अनदर स्टेटमेंट, S is a statement such that, S is a statement पढ़ते हैं, S is a statement such that 2 plus 2 is equal to 4. So 2 plus 2 4 is a statement which is denoted by S here. Similarly, T is a statement such that triangle ABC is a equilateral. So this notion now help us, ये जो notion है, ये जो naming हमने की है P Q R S T, जो अल्फ़ाबेट यूज़ किए और उसके बाद दो डॉट्स यूज़ किए हैं, इससे हेल्प करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हम अपना मैथमेटिकली स्टेटमेंट्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो करना चाहें हम स्टेटमेंट में कर सकते हैं, राइट। सो इस जो हमकी जो स्टेटमेंट है उनकी टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेटमेंट्स, ये हमको हेल्प करेगा इसमें। एंड सी हाउ वी कैन कंबाइन दैम, मैंने जो बताया एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में आ गए, पी क्यू आर एस फॉर्म में आ गए। अब जो मैथमेटिकल चलती हैं प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट्स के, तो हम प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं और इनको हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो हमने सब स्टेटमेंट ली, जो छोटी छोटी स्टेटमेंट ली, सिंगल स्टेटमेंट्स ली, इनको सबको क्या बोला जाता है, सिंपल स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, वन इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट, जब वो इंडिविजुअल अकेली खड़ी होती है, Q इज एन स्टेटमेंट, R इज ए स्टेटमेंट। और यदि ये मल्टीप्लाई होके या कंबाइंड होके ऐड होके जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो जाती है, उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नाउ नेमिंग के बाद वी विल लर्न नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। सो अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी, क्या लिखी थी हम,
ये हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि P is a statement कि it rains in Delhi on September 1st 2005. Similarly Q R S T थी हमारी सारी स्टेटमेंट. So these are called original statement. इसका हमको क्या लिखा है? negation of statement. negation से कुछ समझ में आ रहा है? Negative, right? You are right. Negative of this statement. Negative means एक तरह से opposite of this statement. So कैसे लिखते हैं इसको? इस तरीके से लिखते हैं. And which is a new statement. So P का opposite क्या हुआ? या negative. It's not opposite. Basically, it's negative. ऑपोजिट नेगेटिव फॉर्म में दिखा रहा है. तो वी राइट दिस साइन P और इसको क्या बोला जाता है? पढ़ते कैसे? देखो हम कैसे इसका नेगेटिव लिख दें. इट रेन्स इन दिल्ली ऑन September 1st. बारिश हुई थी. तो यहाँ लिखें इट इज फॉल्स दैट इट रेन इन दिल्ली ऑन September 1st 2005. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा है Q ऑल टीचर्स आर फीमेल. सारे टीचर्स क्या है? फीमेल है. ऑपोजिट क्या होगा इसका? नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q लिखेंगे इट इज फॉल्स दैट ऑल टीचर्स आर फीमेल. तो हम क्या से ज्वाइन कर रहे हैं सेंटेंस में, स्टेटमेंट में? इट इज फॉल्स दैट, जो यहाँ लिखा है इट इज, उसका ऑपोजिट लिख रहे हैं. कि यहाँ बोलते हैं सारे टीचर फीमेल है, हम लिखे नहीं सारे टीचर फीमेल नहीं है. ओके, तो हमने इसको पढ़ते कैसे हैं? ये जो साइन लिखा, अप्रोक्सीमेशन का जो साइन दिया है अल्फाबेट के साथ, इसको बोलते हैं. जैसे पी के साथ हम लिखेंगे उसको पढ़ेंगे नॉट पी. तो ये वाला पहले वाला यदि पी है तो दूसरे वाला क्या है? नॉट पी. नॉट पी मीन्स जो उस दिन बारिश हुई, 1 सितंबर को बारिश हुई थी दिल्ली में, राइट? इट रेन्ड ऑन दिल्ली. यहाँ बोल रहे नहीं उस दिन बारिश नहीं थी, नॉट रेन्ड. नॉट पी, पी नहीं हुआ था. पी तो ये था बारिश हुई थी. नॉट पी मीन्स बारिश नहीं हुई थी. जैसे ये 2 + 2 4 होता है, एस, तो नॉट एस क्या होगा? नहीं, 2 + 2 4 क्या? 4 नहीं होता है. वही तो लिखा है इट इज फॉल्स दैट 2 + 2 = 4. तो दैट मीन्स इट इज नॉट पी. इसका एक अच्छा चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्टेटमेंट्स जो होती हैं, पहली चीज, द स्टेटमेंट नेगेटिव पी नॉट पी नेगेट्स द असर्शन दैट द स्टेटमेंट पी मेक्स. इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जो ये पी बोल रहा है वो उसका जो नेगेटिव है बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, असर्ट कर रहा है, मींस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि नहीं वो नहीं हुआ. और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका करते समय ध्यान रखने का? एक रूल है. जैसे ये ऑल टीचर्स आर फीमेल एंड यहाँ पे हमने लिया, इसको यदि ध्यान से देखें तो वी यूज द फॉलोइंग क्राइटेरिया कि ये P यदि ये Q है और ये नेगेटिव Q है तो एक ही है कि वी हैव रिटर्न द करेक्ट नेगेशन. लिखा है कि नहीं लिखा है? वो क्या है? वो एक ही है. क्या चीज़ है वो ये है, या तो लेफ्ट साइड वाला ट्रू होगा. यदि ये ट्रू होगा तो ये नेगेटिव का क्या होगा? फॉल्स होगा. तो व्हेन P इज फॉल्स, when negative P is false, not P is false whenever P is true. या जब P is true whenever negative P is true तो ये false होगा. मीन्स इधर वाला यदि false है तो ये true होगा, यदि ये true है तो ये false होगा. तो ये रूल हमेशा ध्यान रखना है कि उसका मतलब निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है. जैसे कि ये ऐसा एग्जाम्पल है, ये इजी है. 2 + 2 = 4, तो दिस इज ट्रू. और ये क्या है? फॉल्स है. इट इज फॉल्स दैट 2 + 2 नेगेटिव नॉट एस ये = 4. कहने का मतलब क्या हुआ? 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4. तो या तो 2 + 2 4 होगा या नहीं होगा. तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे को नहीं कर सकती. हमेशा क्या होगा? या तो एक होगा तो ये नहीं होगा. दैट मीन्स वन इज आइदर फॉल्स होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? ट्रू ही होगा. या ये ट्रू है तो वो दूसरा फॉल्स होगा. ये इस आपको हमेशा नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट बनाते समय ध्यान रखना है. एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा. So example number 12. State the negation of the following sentence. Let's make it. Mike's dog does not have a black tail. Mike के डॉग की जो टेल है, जो पूंछ है, वो ब्लैक नहीं है. तो नेगेटिव क्या लिखेंगे हम इसका? It is false that Mike's dog does not have a black tail. इसका मतलब क्या हुआ? We can say Mike's dog has a black tail. ये गलत है कि माइक के जो डॉग की जो टेल है वो ब्लैक नहीं है. दैट मीन्स सही क्या है? माइक के डॉग की टेल क्या है? ब्लैक है. ये मतलब है राइट हैंड साइड में. वेयर लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहे हैं? माइक डॉग डज नॉट हैव अ ब्लैक टेल. यदि ये यहाँ क्या बोल रहा है? उसकी ब्लैक टेल. यदि ये ट्रू है तो ये नहीं होगा, और यदि ये ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड ट्रू है तो ये नहीं होगा. यही सीखा था हमने. तो दैट मीन्स वी हैव मेड द राइट नेगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. अगला लो, ऑल इटरेशन नंबर्स आर रियल नंबर्स. नेगेटिव कैसे लिखेंगे? सेम, इट इज फॉल्स दैट ऑल इटरेशन नंबर्स आर रियल नंबर्स.
और यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट या सम इर्रेशनल नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल इरेशनल नंबर, सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर है। यहाँ जब ऊपर हमने लिख दिया फर्स्ट, तो उसका मतलब क्या है, कम से कम एक तो होगा इरेशनल नंबर और जो कि रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, लेट टेक अनदर वन। और दूसरे केस बोल सकते हैं नॉट ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होते हैं। ये ऑपोजिट एग्जैक्टली आ रहा है। रूट टू इज इरेशनल, कैसे लिखेंगे, इट इज फॉल्स दैट रूट टू इज इरेशनल, या दूसरे तरीके से रूट टू इज नॉट इरेशनल। रूट टू नॉट इरेशनल है या रूट टू इरेशनल है, ये तो या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। दैट मीन्स वी हैव रिटन अ राइट निगेशन, या निगेशन का जो मीनिंग आ रहा है वो ये जो नीचे लिखा है दैट इज के बाद, दैट इज ट्रू, करेक्ट है। सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, कुछ रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। कहने का मतलब क्या हो रहा है, नो रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ रैशनल नंबर इंटीजर होता है, यहाँ बताता है कोई भी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। दैट मीन्स वी हैव डन द राइट नेगेशन। दैट मीन्स या तो ये राइट साइड, राइट हैंड साइड वाली चीज स्टेटमेंट करेक्ट होगी या ये करेक्ट होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की दोनों करेक्ट हो। दैट मीन्स वी हैव डन अ राइट नेगेशन। तो हम बार बार चेक कर रहे हैं उसको। ओके, सम हॉर्सेज आर नॉट ब्राउन, सारे हॉर्सेस ब्राउन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल हॉर्सेज आर ब्राउन, उसका ऑपोजिट, इट इज फॉल्स दैट सम हॉर्सेज आर नॉट ब्राउन। यही तो मतलब हो रहा है, सारे हॉर्सेज यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ बोल रहा है कुछ सम हॉर्सेज आर नॉट ब्राउन, दैट मीन्स दे आर एक दूसरे के नेगेशन में है। Let's take another one. There is no real number x such that x square is equal to -1. So it is false that there is no real number x such that x square is equal to -1. इसका मतलब क्या हुआ, there is at least one real number x such that x square is equal to -1. तो ये करेक्ट हुआ। तो इस तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स के, सारी स्टेटमेंट्स क्या हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स है, मतलब एक ही स्टेटमेंट है, अभी हमने डबल नहीं लिया। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नाउ लेट्स टेक कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मींस मोर देन वन स्टेटमेंट, और उन स्टेटमेंट्स का हम ऑपोजिट या रिवर्स लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कन्वर्स ऑफ एन स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट का कन्वर्स, ऑपोजिट लिखना, जब हम दो स्टेटमेंट एक साथ पढ़ते हैं और उनका ऑपोजिट लिखना। लेट्स लर्न। सो हमने बताया था कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग, क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग टू सिंपल स्टेटमेंट्स से होती है, मिनिमम दो। वी यूज द वर्ड इफ एंड देन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं दो स्टेटमेंट पे, उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इफ एंड देन। ये हम वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए, इफ इट इज रेनिंग देन इट इज डिफिकल्ट टू गो ऑन बाईसाइकिल। यदि बारिश हो रही होगी तब बाहर जाना डिफिकल्ट होगा साइकिल पर। इफ एंड देन, और ये इफ एंड देन आप ना पाइथन में पढ़ोगे या प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो ये बहुत ज़्यादा, या तो ये होगा या ये होगा, यदि या ये हुआ देन यही होगा, राइट। कि जब मैं पढ़ूंगा तभी तो पास होऊंगा, अदरवाइज तो पास ही नहीं होगा। तो सेम वे में, तो आप ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, देन के बाद वाला, ये वाला है। तो पहले स्टेटमेंट को हम सपोज बोल देते हैं P, इसको Q लिख सकते हैं ना। स्टेटमेंट अभी हमने दिया, सीखा था कि स्टेटमेंट्स को आप अल्फाबेट से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम डिफाइन फर्स्ट स्टेटमेंट एज P, द अनदर बाय Q। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, इफ एंड देन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, P इज अ स्टेटमेंट, Q इज अ स्टेटमेंट, और मैं इन दोनों को कैसे लिखता हूँ, इफ P देन Q, ये स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इफ P, यदि P होगा देन ओनली Q होगा। इफ इट इज रेनिंग, यदि बारिश हो रही होगी, देन इट इज डिफिकल्ट टू गो ऑन बाईसाइकिल, बहुत डिफिकल्ट होगा बाईसाइकिल बारिश में जाने में, राइट। इफ P कॉमा देन Q, ओके। इसका मतलब क्या हो रहा है, P इम्प्लाइज Q, P होगा तभी Q होगा,
और दूसरे तरीके से लिखते हैं, इम्प्लाइज को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, पी इम्प्लाइज, ये दोनों ऐसे इक्वल साइन में एरो लगा के, P इम्प्लाइज Q, मीन्स P होगा तभी Q होगा, तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है, देखो P से Q की तरफ, पहले P होगा देन Q होगा, इफ P, यदि P नहीं होगा तो Q होगा ही नहीं, ये तरीका होता है लिखने का, शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो इस पूरे सेंटेंस को या पूरी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को हमने पहले तो उनको P एंड Q से डिफाइन किया, हाईलाइट किया, और उनको मैथमेटिकली बहुत छोटे से लिख दिया हमने, P इज इक्वल टू P इक्वल्स टू Q इम्प्लाइज Q, पढ़ते कैसे, P इम्प्लाइज Q, P होगा तभी Q होगा, राइट। एंड P इज बेसिकली व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, ये हमने अजम्पशन लिया है। जैसे इसमें अजम्पशन है, इफ इट इज रेनिंग, यदि बारिश हो रही होगी, इफ लगा दिया, देखो इफ मींस इज अ हाइपोथेसिस, इज एन अजम्पशन, तभी ये क्यू क्या होगा, कंक्लूजन या रिजल्ट आएगा, तभी तो डिफिकल्ट होगा बाइसिकल चलाना, अदरवाइज इट विल बी वेरी इजी, यदि बारिश नहीं होगी तो बारिश साइकिल चलाना इजी होगा। तो इट इज अ हाइपोथेसिस, दिस कॉल्ड अ कंक्लूजन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ द वाटर टैंक इज ब्लैक, यदि पानी की टंकी यदि काली है, देन इट कंटेन्स पोर्टेबल वाटर, तभी वो पीने का पानी उसमें होगा। यदि पानी की टंकी काली नहीं होगी तो पीने का पानी नहीं होगा वो, यही मतलब हुआ है सेंटेंस का। तो इसमें पी कौन से है, एक स्टेटमेंट है ये, एक स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट दिए हुए, राइट। तो स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए, और दो स्टेटमेंट क्लियर हो गए, और उनके बीच का रिलेशन हमारा क्लियर होगा। अब हम सीख क्या रहे हैं, कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड क्या बोली थी, दो स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट जिनको हमने इफ और देन से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सब कनेक्टेड है, इफ पी देन क्यू, so this is a compound statement, and we have to learn converse of a statement, that is opposite या reverse of this। तो हमको रिवर्स सीखना है, so let's do that। so ये P है, ये Q है, इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं, इसको P को ये बोल देते हैं, इसको P, और P को क्या बोल देते हैं, Q, यही तो मतलब हुआ रिवर्स। आप देखो हमने क्या लिखा, Q implies P, पढ़ो इस सेंटेंस को दोबारा। तो we can write this way, इफ द वाटर इन द टैंक इज पोर्टेबल, मीन्स मैं इसको यहाँ ले गया, पी को उठा के यहाँ ले गया पूरे को, यही तो क्यों हो गया, मतलब जो पी को क्यों नहीं किया, मतलब ऐसे उठा के ले गया मैं, तो मैंने जब इधर से उधर किया, तो मैं इस पोर्टेबल वाटर वाली टैंक को यहाँ ले आया। देखो, इफ द वाटर इन टैंक इज पोर्टेबल देन टैंक मस्ट बी ब्लैक, यदि पानी पीने के लायक होगा तब वो टैंक कैसे कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, राइट। So this statement is called converse of the above statement. Q implies P, मतलब क्या हुआ, if water in the tank is potable then tank must be black। और इसी स्टेटमेंट में अब हाइपोथेसिस हमारी उल्टी हो गई, Q implies P। क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, इफ द वाटर टैंक इज ब्लैक, यदि वाटर टैंक, पानी की टंकी यदि काली होगी तब वो पीने लायक पानी होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, इफ टैंक के अंदर पानी जो है पीने लायक होगा तो टंकी क्या होगी, 100% इट मस्ट बी ब्लैक, काली होगी, नहीं तो पीने लायक पानी नहीं होगा, यही तो मतलब है। क्लियर, तो दिस कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, तभी आपको कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट क्लियर होगा। So example number 13, write the converse of the following statements। So statement क्या दिया है, if Jamila is riding a bicycle then 17th August falls on a Sunday। जब जमीला साइकिल पे बैठी होगी, राइडिंग अ साइकिल या साइकिल चला रही होगी, तो वो क्या होगा उस दिन, 17 अगस्त होगा, और वो क्या होगा, 17 अगस्त होगा ऑन संडे। इसका कन्वर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, इफ, यहाँ जो देन के बाद का बोली, तो इफ 17th अगस्त फॉल्स ऑन संडे, यदि 17th अगस्त संडे को फॉल करेगा, देन जमीला इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। ट्रू। लेट्स टेक अनदर, इफ अहमद इज इन इंडिया देन ही इज इन मुंबई। इसका कन्वर्स क्या होगा, ऑपोजिट, इफ अहमद इज इन मुंबई, पहले वाला देखो सेकंड सेंटेंस में जो राइट साइड में लिखा है क्यू वाला पार्ट स्टेटमेंट, वो पहले लिखते हैं, इफ अहमद इज इन मुंबई देन ही इज इन इंडिया,
यहाँ क्या बोले थे, अहमद इज इन इंडिया, अहमद इन इंडिया है तो वो कहाँ होगा, देन ही इज इन मुंबई में होगा। और हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इफ अहमद इज इन मुंबई तो उसका मतलब है देन ही इज इन इंडिया, वो इंडिया में है। अनदर स्टेटमेंट, इफ पॉलिंग इज एंग्री देन हर फेस टर्न्स रेड, जब वो गुस्सा होती है तो उसका फेस क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसका ऑपोजिट या कन्वर्स क्या लिखेंगे, यदि पॉलिन का फेस लाल हो जाता है इसका मतलब वो गुस्सा है। तो लेट्स राइट डाउन, इफ पॉलिन फेस टर्न्स रेड देन शी इज एंग्री। Another is if a person has a viral infection, then he runs a high temperature. यदि उसमें high temperature है, इसका मतलब उसको viral infection है. Write it down. If a person runs a high temperature, then he has a viral infection. तो बहुत simple से है. Another, if a triangle ABC is equilateral, then all its interior angles are equal. ये मालूम है? तो हम उल्टा क्या लिखेंगे? If in a triangle all the interior angles are equal, then triangle is equilateral. Write it down. If all the interior angles of the triangle ABC are equal, ये तो लिखा है बाद में, then it is a equilateral triangle. तो this is converse of that. बता दोनों एक ही चीज रहे हैं, but conditions P और Q एक दूसरे को इधर से उधर ट्रांसफर हो जा रहे हैं. Another example, if x is an irrational number, then the decimal expansion of x is a non-terminating, non-recurring. तो लिख दो बहुत easily. If the decimal expansion of x is non-terminating or non-recurring, then x is a irrational number. Let's take the last one. If x minus a is a factor of a polynomial px, यदि x minus a polynomial का factor है, then at a x is equal to a, x minus a is equal to 0 बोलते हैं तो x equal to a, x equal to a पे क्या होगी, polynomial की वैल्यू क्या होगी, 0, तो रूट ऑफ द polynomial है, यही बोल रहा है। तो इसको लिख दो दूसरे तरीके से, कैसे लिखेंगे, if pa is equal to 0, यदि pa की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब ये हो रहा है then x minus a is a factor of the polynomial, यही तो बोलते हैं, राइट। ओके, कन्वर्स लिखना तो हम लोग सीख गए। सो इन दिस एग्जांपल हम कुछ एक और चीज करेंगे, क्या करेंगे, वी विल चेक द कन्वर्स इज ट्रू और फॉल्स, उसका देखेंगे जो स्टेटमेंट फाइनली आ रही है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, लिखना तो हम सीख गए। So example 14 is write the converse of the following statement. In each case also decide whether the converse is true or false. First statement is if n is an even integer then 2n plus 1 is an odd integer होगा। तो स्टेटमेंट कन्वर्स लिखना तो बस क्या है, इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो। तो लेट्स राइट इट डाउन। इफ 2n plus 1 is an integer then n is an even integer। दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, बस आगे पीछे हो गए, रिवर्स हो गए। 2n plus 1 क्या होगा, इज एन ऑड इंटीजर होगा तब जब n एक इवन इंटीजर होगा। n इवन इंटीजर होना चाहिए तो उसका हमेशा 2n plus 1 क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑड होगा। इधर भी देखें तो यही लिखा हुआ है, if n is an even integer, यदि n even होगा then 2n plus 1 is an odd integer। that means कन्वर्स में हमने ये जो चीज थी कि इट इज नॉट अ नेगेटिव ऑफ दिस बट इट इज ऑपोजिट। नेगेटिव और ऑपोजिट में फर्क है, नेगेटिव मतलब ये सही है तो ये गलत है, या ये गलत है तो ये सही है। बट कन्वर्स में हमने सिर्फ क्या किया, उसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, बाद में लिख दिया, और सेकंड स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, हमने रिवर्स कर दिया, या स्टेटमेंट का लिखने का तरीका ऑपोजिट कर दिया। तो दोनों स्टेटमेंट्स को, ये स्टेटमेंट हो या ये स्टेटमेंट, जो भी हमने कन्वर्स किया, कन्वर्स तो हमने चेक कर दिया, बट हमको एक सेकंड काम क्या करना है कि वेदर द कन्वर्स इज ट्रू और फॉल्स, जो ये स्टेटमेंट है पहला या दूसरा कोई भी लो स्टेटमेंट, ये हमारा ट्रू है भी कि नहीं, तो करके देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल के लिए, तो दिस एग्जांपल इज एक्चुअली इट इज फॉल्स। व्हाई दिस स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, एग्जांपल के लिए जैसे 15 है, 15 इज एन ऑड इंटीजर, 15 को मैं से 2n plus 1 में लिख सकता हूँ, 7 to the 14 plus 1। 7 क्या एक इंटीजर है, क्या वो इवन है, नो क्या है 7 ऑड है। दैट मीन्स मैंने काउंटर एग्जांपल निकाल लिया इसका, तो 7 एक ऑड इंटीजर है, तो 2n plus 1 कोई जरूरी नहीं है फॉर एवरी इंटीजर, तो ये हमेशा ऑड ही हो इवन इंटीजर के लिए, जबकि 7 इज एन ऑड और 15 इज आल्सो एन ऑड, राइट। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जबकि पहले वाले में जो कन्वर्स है, पहले में देखो क्या लिखा था, n इज एन इवन इंटीजर, पहले कंडीशन में थी कि n पहले ही इवन इंटीजर है,
तब 2n+1 ऑड होगा। तो n मान लो हम इवन ही लेते, 7 ले ही नहीं सकते थे, राइट। जब 7 ले नहीं सकते तो अपने आप ये 7 ले 8 लेते, 8 2 16 + 1 17 ऑड होता। वेरस कन्वर्स में क्या लिखा था, पहला ये हमने इसको पहले लिख दिया, पहले क्या लिख दिया, 2n+1 इज एन ऑड इंटीजर, 2n प्लस ऑड इंटीजर होगा, तो इसलिए तो हमने 15 लिया, 15 ले लिया, इज एन ऑड इंटीजर, 15 ऑड इंटीजर है। और 2n+1 फॉर्म में, यस इट इज इन 2n+1, तो उसने बोला जो n होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये दैट मीन्स स्टेटमेंट, लेफ्ट साइड स्टेटमेंट जो हमने राइट साइड उसका कन्वर्स करके उसको रिवर्स किया, तो बहुत बार हो सकता है कि हमारी राइट साइड की स्टेटमेंट इज करेक्ट हो और लेफ्ट साइड की हमारी फॉल्स हो जाए, या वाइस वर्सा। तो कन्वर्स करते समय भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने स्टेटमेंट को आगे पीछे करने से क्या उसका मीनिंग भी उल्टा हो गया, मीनिंग भी चेंज हो गया, यस चेंज हो गया थोड़ा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, if the decimal expansion of a real number is terminating, then the number is a rational number. This is a true statement, करेक्ट है। इसका कन्वर्स लिखते हैं, तो मीन्स पहले लिखेंगे कि the if the number is rational number, if the number is a rational, then its decimal expansion is terminating। और ऐसा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी, क्यों, यदि नंबर रियल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, ये तो है, if the decimal expansion of a real number is terminating then it is a rational number। तो हम क्या बोल रहे हैं, if a real number is a rational number then it is a then its decimal expansion is terminating। नहीं, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, then it is false। एक और एग्जांपल, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of corresponding angle is equal। ये तो हमने देखा ही था। तो इसका कन्वर्स क्या, उल्टा लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरेस्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। दिस इज ट्रू। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू हो गया, क्यों ट्रू हो गया, ये दो पैरेलल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लेते हैं, ये दोनों यदि सेम है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। दूसरे केस में हमने क्या किया, इफ अ ट्रांसवर्सल, पहले केस में देखो पढ़ते हैं, इफ द ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, ये टी ट्रांसफर करती है दो पैरेलल लाइन को, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं दोनों इक्वल होते हैं। इधर क्या बोला कि यदि मेरे करस्पॉन्डिंग दो लाइन के पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइन कट करती है वो उसकी ट्रांसवर्स होती है, या दोनों लाइन पैरेलल होती है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरेक्ट्स टू लाइंस, दो लाइन को कट करती है और उसके पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल। ये हमारी एक थ्योरम भी थी। सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट, मींस कन्वर्स भी इसका ट्रू हो गया, दोनों ही ट्रू है। वन मोर एग्जांपल, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then the quadrilateral is a parallelogram। कन्वर्स क्या हुआ इसका, if a quadrilateral is a parallelogram then each pair of its opposite sides is equal। बना लेते हैं, so this is a true, क्यों ट्रू है, ये देखो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और ये दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो पढ़ो ध्यान से, पहले में इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है इक्वल है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ वाले में क्या लिखा है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम है, देन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मैं कैसे ही बोल दूं कि मेरा वो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है उसकी साइड्स दोनों क्या होगी, इक्वल होती है, या वो क्वाड्रिलेटरल जो यदि मेरा पहले ही पैरेललोग्राम है तो ईच पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, यदि वो क्वाड्रिलेटर जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल है वो पैरेललोग्राम है। तो कन्वर्स भी इसका दोनों केसेस में ट्रू है। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं दैट मींस एग्जैक्टली सेम है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो करेक्ट है। इसका कन्वर्स क्या देखें, if the corresponding angles in two triangles are equal then they are congruent। No, it's false। Why? याद है, yes, these two triangles are not congruent though their angles are क्या है, equal, corresponding angles equal है, दो ट्राइंगल सिमिलर तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, that means the converse is not true, false हो गई। प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इसका एक और नाम भी होता है प्रूव बाय इनडायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स। हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर रहे उस चीज को, हम इनडायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम कुछ सेंटेंसेस आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके अपनी चीज को प्रूव कर रहे हैं।
सो हम लोग जनरल लाइफ में तो देखते हैं, मैथमेटिक्स में भी हमको ये मेथड यूज करते हैं, मेथड कॉल प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। पहली बात तो कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है वो समझ लें, और मैथमेटिक्स में कैसे बोलते हैं हम कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। सो मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है, सपोज पी इज अ स्टेटमेंट, तब होता है कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में कि हम बोलते हैं पी एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, और इसका नेगेटिव पी नॉट पी जो है वो भी ट्रू है। पी भी ट्रू है, नॉट पी जब नेगेटिव है तो वो कैसे ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। दैट मीन्स वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स हम कंफ्यूज हो गए, जैसे लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी, कोई बोलता है सन जो है ईस्ट से उगता है, दूसरा बोलता है नहीं सन वेस्ट से उगता है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं पर दोनों ट्रू बोल रहे हैं लोग, तो ऐसा हो सकता है नहीं। दैट मीन्स दिस समथिंग इज कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स वन ऑफ देम इज नॉट ट्रू, सो वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक एग्जांपल के और मैथमेटिक्स वाले एग्जांपल समझते हैं। सपोज वी हैव टू स्टेटमेंट्स, पहली स्टेटमेंट होती है x इज इक्वल टू, और दो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। x is equal to a upon b where a and b are co-prime. Similarly another statement है q which is an independent, इस नेगेटिव नहीं है, उसका अलग स्टेटमेंट है q, q is 2 divides both a and b, वो a and b जो है co-prime है, उनको डिवाइड करती है। अब हम मान लो को-प्राइम क्या होता है मालूम है ना, वो नंबर्स, वो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के साथ प्राइम हो, को एग्जिस्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या अपने वन से डिवाइड हो, राइट। जैसे नंबर 2 3 5 7, 7 जो है खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, उससे ज़्यादा उनके कोई फैक्टर होते ही नहीं है। तो ओनली कॉमन फैक्टर कोई प्राइम में, को प्राइम में ऐसी दो नंबर एक दूसरे के साथ प्राइम है, मीन्स उनके बीच में कॉमन फैक्टर वन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नंबर 2 एंड 3, तो इन दोनों के बीच के यदि फैक्टर देखूं तो क्या डिवीजन है, 2 और 1, और 3 इंटू 1, तो 1 ही कॉमन है। तो अब ये हमारे पास एक नंबर है 2 और 3, ये दो नंबर है ए एंड बी है। पहले सेंटेंस स्टेटमेंट के को खाली लेते हैं जो कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो देखते हैं 2 और 3 क्या इन दोनों को सेटिस्फाई करती हैं। लेट्स सी, P क्या दिया है, P इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, तो एक्स अपॉन बी लिखते हैं ए अपॉन बी, ए अपॉन बी क्या 2 है अपॉन 3, 2 अपॉन 3, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, 2 एंड 3 को प्राइम है, यस है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नीचे वाले स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, क्यू से कोई मतलब नहीं है, पी से कोई मतलब नहीं है, क्यू को पढ़ रहे हैं खाली। 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, ए क्या है 2, ये है 3, यहाँ कोई को प्राइम की बात नहीं हो रही, बस ये देखें 2 डिवाइड बोथ ए एंड बी, नहीं वो 3 को तो डिवाइड नहीं करता। दैट मीन्स दिस, फॉर दिस एग्जांपल 2 एंड 3 के लिए ये वाली स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इज इनकरेक्ट, नेगेटिव नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ए और बी की वैल्यू, ए है 22 और ये 24, क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, यस फैक्टर बनाया हमने, ये हो गए और ये हो गए। अब देखो इस एग्जांपल के और ये फैक्टर्स को देखते हुए, मतलब ये दो नंबर को यूज करते हुए पहली स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। x इज इक्वल टू ए अपन बी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं 22 अपन 24, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, 22 और 24 को प्राइम है, नहीं है, 1 1 के अलावा 2 भी इनका कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये दोनों को प्राइम नहीं है। यदि ये को प्राइम नहीं है तो पी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, इस एग्जांपल के लिए 22 24 के लिए इनकरेक्ट हो गई। अब नीचे वाली को देखते हैं, 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी मीन्स 2 एंड 24 को डिवाइड करता है, यस 2 इधर भी है इधर भी है, तो ये दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजन है। दैट मीन्स फॉर दिस एग्जांपल 2024 स्टेटमेंट क्यू इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ जब भी हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं इस केस के अंदर, तो या तो ये राइट हो रही है या नीचे वाली राइट हो रही है, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा दोनों एक दूसरे के साथ राइट हो रही है। दैट मीन्स जब हम ऐसी वे नंबर्स ले रहे हैं, कोई भी दो पेयर का नंबर ले रहे हैं, तो उस केस में कोई ज़रूरी नहीं है कि देर इज़ नो चांस कि जब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। दैट मीन्स इनडायरेक्टली दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग, जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो हमेशा अपोजिट ही आएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आएंगे, हमेशा अपोजिट ही आंसर आने वाले हैं, ठीक है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल इज ऑल वुमेन्स आर मोर्टल, मोर्टल मतलब जिनकी डेथ होती है, दैट मीन नश्वर है, सारी औरतों की डेथ होती है। ज्येष्ठा इज अ वुमेन, ज्येष्ठा भी एक क्या है, एक औरत है। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ज्येष्ठा इज अ वुमेन, नेगेटिव क्या होगा, यदि हम स्टेटमेंट बोलते हैं पी, सो व्हाट इज दिस, द स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ज्येष्ठा एक औरत है, यदि वह एक औरत है तो सब औरतों की डेथ होती है, ये हम बोल सकते हैं। नेगेटिव ऑफ पी, नेगेशन, नॉट पी, नॉट पी क्या होगा, नॉट पी होगा, नॉट पी, नॉट पी पहले लिख लेते हैं, नॉट पी होगा ज्येष्ठा इज नॉट अ वुमन, ये लिख सकते हैं, ज्येष्ठा इज अ वुमन, तो नेगेटिव उसका होगा ज्येष्ठा इज नॉट अ वुमन, वो औरत नहीं है। दैट मीन्स दिस इज, एंड वी अज्यूम करते हैं कि
अज्यूम हमने क्या किया है कि नेगेशन ऑफ पी इज ट्रू, इसका जो नेगेशन है मीन्स जेस्टा इज नॉट ट्रू इज ट्रू, ये सही है कि जेस्टा इज अ वुमन, ये ट्रू है। पहले तो एक स्टेटमेंट में था, हम बोल रहे हैं इसका नेगेटिव जेस्टा इज नॉट अ वुमन, ये ट्रू है। सपोज यदि ये ट्रू है, यदि ये जेस्टा वुमन नहीं है, तो वो मोटल इमोटल नहीं हो सकते उसके वो, और क्योंकि उसकी डेथ नहीं हो सकती, तो हम यही तो बोलेंगे कि जेस्टा इज नॉट मोटल इनडायरेक्टली, जेस्टा की कभी डेथ नहीं होगी। तो व्हेन नेगेटिव ऑफ पी इज ट्रू, तो दैट मीन्स जो पहला सेंटेंस लिखा है, जो पहला स्टेटमेंट लिखा है वो नहीं होगा, तो जेस्टा इज नॉट मोटल। तो ये कॉन्ट्राडिक्टी हो गया। यदि हमने इसका ऑपोजिट ले लिया, यदि हमने ऑपोजिट ले लिया, लेट्स टेक वन एग्जांपल, इसमें थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। ऑल वुमेन्स आर मोर्टल एंड जेस्टा इज अ वुमेन। जेस्टा एक औरत है और सारी औरतों की डेथ होती है, सो जेस्टा की भी क्या होगी, डेथ होगी। इस सेंटेंस का मतलब ये आ रहा है। सपोज पी जेस्टा इज अ वुमेन, ये स्टेटमेंट हम पी बोलते हैं, एंड अज्यूम करते हैं कि इसका जो नेगेटिव है, इसको प्रूव करने के लिए कि ये सेंटेंस जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसको प्रूव करने का एक कौन सा मेथड यूज करें, मैथ प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मींस इनडायरेक्ट हम आर्गूमेंट लेंगे, ऑपोजिट लेंगे इसका। हम ये ऑपोजिट क्या लेंगे कि जेस्टा एक अज्यूम करते हैं कि इसका जो नेगेटिव क्या होगा, जेस्टा इज अ वुमन, नेगेटिव क्या होगा, नॉट पी, जेस्टा इज नॉट अ वुमन, और अज्यूम करते हैं दैट इज नॉट, दैट इज आल्सो ट्रू, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, पर हम उसको अज्यूम करें इट इज ट्रू। We assume negative of P is true, that is Jesta is not a woman। यदि ये true है, यदि ये true है तो Jesta is not woman and all women are mortal, सारी women की डेथ हुई है, that means Jesta की मौत नहीं होगी, Jesta is not mortal। तो हमने प्रूव किया। अब Jesta नॉट mortal है तो that means she is not a woman, डायरेक्टली हमने प्रूव कर दिया। और ऐसा है नहीं, जबकि उन्होंने दिया हुआ है Jesta क्योंकि एक औरत है इसलिए उसकी डेथ होगी। तो इनडायरेक्टली जब हम नेगेटिव चीज लेते हैं तब भी हम उसको एग्जाम्पल को अपने को प्रूव कर सकते हैं। थोड़े बेटर एग्जाम्पल लेंगे अगले एग्जाम्पल में, तब आप और अच्छे समझोगे, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। लेट्स टेक a better example. Now with this example you will understand कि how to use proof by contradiction, this method को कैसे use करते हैं in proving any statement। So example number 15 is the product of a non-rational number and a irrational number is irrational। तो इन दोनों नंबर्स का, रैशनल और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल है, ये हमको प्रूव करना है। सो लेट्स अज्यूम सर्टेन थिंग, लेट आर बी अ नॉन रैशनल नंबर एंड एक्स बी अ इरेशनल नंबर। आर यदि रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, एम अपॉन एन, वेयर एम एन आर इंटीजर्स एंड m is not equal to 0 और डिनोमिनेटर n is not equal to 0। m not equal to 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला नॉन जीरो रैशनल नंबर, इसलिए हमने कहा m भी जीरो नहीं है, पहले से ही बोल दिया, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है, तो हमने कहा था नॉन जीरो लेना है तो हमको ये लिखना पड़ेगा, राइट। सो एंड वी नीड टू प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, रैशनल और इरेशनल क्या है, इरेशनल होगा। अब हमको प्रूव करना है बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम इसका नेगेटिव पी लेंगे, इस स्टेटमेंट का। इसका नेगेशन क्या होगा कि अज्यूम आर एक्स इज अ रैशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं आर एक्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है रैशनल और इरेशनल का नंबर का, वो इरेशनल नहीं आ रहा है, वो रैशनल आता है मान लो। यदि वो रैशनल आता है तो आर एक्स को हम, ये रैशनल नंबर आर नंबर है तो इसको हम एक रैशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, से पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को, x की वैल्यू, r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू क्या थी, m अपॉन एन इंटू एक्स, यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम x निकाल लेते हैं n अपॉन p अपॉन एम क्यू। x क्या लिया हमने, इरेशनल नंबर, राइट। और अभी जितने भी एजम्पशन लिए हैं हमने उसमें माना था कि एन पी, एन पी, देखो यहाँ ये n और ये p, और सिमिलरली m, यहाँ पे ऊपर m और ये q, क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं और सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है। सो वी कैन से सिंस np और np का प्रोडक्ट, दो np और mp दो इंटीजर का प्रोडक्ट, तो वो इंटीजर ही होगा। पहली बात, सारे इंटीजर थे तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और m एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं जीरो है, देखो q नॉट इक्वल टू जीरो है और m भी हमने कहा था नॉट इक्वल टू जीरो है।
तो डिनोमिनेटर जो है x का जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है और ये सारे के सारे इंटीजर हैं, तो वी कैन से x इज अ रैशनल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं x जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। बट हमने अज्यूम क्या किया था, x इज अ इररेशनल नंबर। और यदि हमने ये अजम्पशन ले लिया कि दोनों का प्रोडक्ट का जो नंबर है, जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है वो रैशनल नंबर होता है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, x को भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बट ये रैशनल है। दैट मीन्स द assumption we have taken is wrong or is contradicting to what is given as x is a irrational number। जो दिया हुआ उसका बिल्कुल ऑपोजिट निकाल दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको। एंड इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, दैट मीन्स जो हमारा assumption था इट इज रॉन्ग। If this is wrong, that means the product of rational and irrational number हमेशा क्या होता है, always an irrational number, hence proved। तो हमने किस मेथड से प्रूव किया, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन लिया कि r और x का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल की जगह क्या मान के चलें, यदि रैशनल है। और यदि रैशनल है तो इससे हमने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया कि जो इरेशनल नंबर है वही रैशनल है, जो कि हो नहीं सकता, राइट। Let's take another example, and this example is based on a theorem what we have learned। क्या theorem थी, out of all line segments drawn from a point to points of a line not passing through the point, the smallest is a perpendicular to the line। याद आया कुछ, बहुत सिंपल फॉर्म में, एक लाइन है, उससे एक दूरी पर एक पॉइंट है। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, लाइन क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। तो बहुत सारे पॉइंट है लाइन के ऊपर एक तरह से, तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट को हमने इस पी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। सो क्या बोल रहा है, ये लिखा हमने, और हमको क्या प्रूव करना है, द स्मॉलेस्ट इज द परपेंडिकुलर टू लाइन। तो जो पी से जो एम को जो पॉइंट है एम को कनेक्ट कर रही है, ये सारी जो पॉइंट्स लाइन बन रही है, ऐसी बहुत सारी लाइन, उसमें जो स्मॉलेस्ट लाइन होगी वो कौन सी होगी, जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगी। मीन्स पी जो एम यदि हमारी लाइन है, तो यदि ये स्मॉलेस्ट है ब्लू कलर वाली लाइन, तो ये क्या एंगल बना रही होगी एक्स वाई के साथ, 90 डिग्री। दैट मीन्स 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये हमको प्रूव करना है, ओके। अब हम मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी अज्यूम कि पी एम बी नॉट परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। प्रूव करना है पी एम जो है परपेंडिकुलर एक्स वाई, तो उसका नेगेटिव क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज, ऑपोजिट। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट पी एम इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। सपोज ये पी एम जो है एक्स वाई के परपेंडिकुलर नहीं है, दैट मीन्स कोई और लाइन होगी। तो अनदर लाइन ड्रॉ करते हैं पी एन, राइट, ऑन लाइन एक्स वाई शो बाय द डॉटेड लाइन जो हमने बनाई, और ये मान के चलते हैं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही बोल रहा है। सो पी एन विल बी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, पी एम जितनी बाकी बची, विच मीन्स पी एन की जो लेंथ होगी इज लेस देन पीएम, पीएम से कम होनी चाहिए, राइट। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस दैट पीएम इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट। हमने तो अभी यही बोला कि हमने लाइन ली कि पीएम जो है परपेंडिकुलर नहीं है, हमने कहा दूसरी लाइन है एक पीएन जो परपेंडिकुलर है, और यदि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये पीएन जो होगी किससे छोटी होगी, वो पीएम से छोटी होगी, यही तो है। बट हमने दिया हुआ है पीएम जो है, हमने बोला था पीएम जो है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट है, और यदि ये पीएन स्मॉलेस्ट नहीं है, दैट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो पीएम क्या है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर द लाइन सेगमेंट पीएम इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हमने इनडायरेक्टली, और यह बोला इनडायरेक्ट आर्गुमेंट के हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव कर दिया। Let's revise what we have learned in this appendix. We learned different ingredients of proof and other related concept learned in class 9th. क्या क्या सीखनी हुई, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमने बोला is a sentence which is not an order or an exclamatory sentence or not a question. It will always be either true or always false. कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं ambiguous होते हैं, means need some more explanation, और the statement is subjective, क्लियरिटी नहीं है उसमें, उनको बोलते हैं ambiguous statements। हमने देखा था स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं, एक्सियम्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट, कुछ उसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेप्टेड है, सो एक्सियम्स हो गए।
जिसमें आपने कुछ एनालिसिस करके आपने प्रूव किया हुआ है तो उनको कंजक्शन या पोस्टुलेट्स बोलते हैं। और जो मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया उसका प्रूफ, तो उनको क्या बोलते हैं? थ्योरम्स, राइट। फिर हमने सीखा नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के लिए, और स्टेट नेगेशन किन स्टेटमेंट का सीखा? प्राइमरी स्टेटमेंट्स का सीखा, मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स का। एग्जाम्पल के लिए यह है माई डॉग्स डज नॉट हैव अ टेल, तो इसका नेगेशन क्या होगा? हमको उसमें आगे क्या ऐड कर देना है? इट इज फॉल्स दैट माई डॉग्स डज नॉट हैव अ टेल। इसका मतलब क्या हुआ? माई डॉग हैज अ ब्लैक टेल। माइक के डॉग की जो टेल है, पूंछ है, वो काली है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? माइक के डॉग की जो टेल है वो काली नहीं है। तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, नेगेटिव हो गया। तो स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट को हम उसको अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, यस लाइक पी इज टू पी सच दैट यस होगा। और इसका नेगेटिव नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? उसमें अप्रोक्सीमेट का साइन लगा के सेम चीज को लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं? नॉट पी। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे क्या हुई? अपोजिट हुई एग्जैक्टली, या नेगेटिव हुई, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। सेम वे में कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ा था, बट ये हमने पढ़ा था किस चीज़ के लिए? कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स जहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट होती हैं और वो इफ एंड देन से जुड़ी होती है। लाइक एग्जाम्पल के लिए, इफ द वाटर टैंक इज ब्लैक, दिस द फर्स्ट स्टेटमेंट, देन इट कंटेन्स पोर्टेबल वाटर विच इज द सेकेंड स्टेटमेंट। तो दिस इज द स्टेटमेंट से पी, दिस इज अ स्टेटमेंट क्यू। तो ये दो हमारी स्टेटमेंट है जो इफ एंड देन से जुड़ी है। सो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था? इनका रिवर्स कर दें, यदि P को हम Q की जगह ले जाएं और Q को जो हम P की जगह ले जाएं, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट अब हमने रिवर्स कर दी, तो कैसा हो जाएगा सेंटेंस? इस तरीका हो जाएगा। एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट, मींस कन्वर्स ऑफ अवर स्टेटमेंट। और मैथमेटिकली स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखता है, अभी ये कन्वर्स हो गया, Q इम्प्लाइज P, तो इस साइन का मतलब क्या था? इम्प्लाइज। तो इस कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी? इफ द वाटर टैंक इज पोर्टेबल देन द टैंक मस्ट बी ब्लैक। यदि पीने का पानी है टैंक में तो टैंक कैसा होगा? काला ही होगा। तो इट इज द कन्वर्स। कन्वर्स स्टेटमेंट डजंट मीन इट इज नेगेटिव ऑफ द अबव स्टेटमेंट। यहाँ क्या लिखा है देखो, इफ द वाटर टैंक इज ब्लैक, यदि पानी का टैंक काला है तो इट कंटेन्स पोर्टेबल वाटर, तो पीने का पानी होगा उसमें। दूसरे कैंसिल में क्या बोल रहा है कि वाटर टैंक में जो पीने का पानी यदि इसमें है तो टैंक का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। तो ये दोनों सेम सेंटेंस ही हैं, बट ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं। और रिवर्स ऑर्डर को बहुत बार हमको चेक करना होता है कि कन्वर्स स्टेटमेंट कभी कभी हो सकता है वो फॉल्स भी हो जाते हैं, ठीक है, पर नेगेटिव, नॉट नेसेसरी नेगेटिव। एक हमने इन्हीं स्टेटमेंट्स को, यदि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रूफ करना हमने सीखा, और प्रूफ एक अच्छे तरीके से सीखा। वो क्या था? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या था? एक पी स्टेटमेंट इज ट्रू है, उसका नेगेटिव पी या नेगेशन ऑफ पी वो भी ट्रू हो। यदि ऐसा ट्रू हो, ऐसी प्रैक्टिकल है, दैट मीन्स देयर इज अ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मीन्स देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट मीन्स ये भी ट्रू और उसका नेगेटिव भी ट्रू। ऐसा हो नहीं सकता। यदि नहीं हो सकता है तो इसी चीज को हमने यूज करते हैं किसी चीज को प्रूफ करने के लिए। दैट मेथड इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जैसे एक ट्राइंगल है, उसके अंदर ए सी स्क्वायर, यदि उसकी पाइथागोरस थ्योरम लिखी है हमने, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इट वुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम कह सकते हैं यदि किसी ट्राइंगल के अंदर ऐसा यदि हो रहा हो तो इट वुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इसका नेगेटिव क्या होगा? इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि ऊपर वाला भी करेक्ट है और ये नीचे वाला भी करेक्ट है, मीन्स कि वो राइट एंगल ट्राइंगल भी है और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी है। तो हम एक सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? प्रूफ में हम बोलते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और ये प्रूव करते हैं कि ए सी इज इक्वल टू इसके बराबर नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। पर जब हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो मालूम चलता है कि उस ट्राइंगल में क्या प्रूव हो रहा है? कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है। और यदि पाइथागोरस जो है प्रूव हो रही है, दैट मीन्स वो ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस टाइप के मेथड को हम यूज करते हैं बाय, और इनडायरेक्ट मेथड को बोलते हैं या प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, राइट। थैंक यू। So if you have any query or feedback, please suggest, and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.